So, hello, dear, all of you. This side Vikram Chawla. Today, I would like to share one thing with all of you guys. The one thing is that in this world, I think biggest fear is that speaking, rather Hindi or English or other language. Problem is that everyone, I think, feel hesitate to speak, and in our society we are just using our normal languages like Hindi or Punjabi and all the things. But if there is a topic about English, we have knowledge how to understand English, because we learn it so many vocabularies in our school time, in our college time, by books, by vocabulary, by so many things. But when the topic comes to speak, when the things come to speak, we have a problem. We are not able to speak in front of any other. There is no matter about how many people are there. How many people are there, there is no matter. Matter is that most of the person feel hesitate when the time comes to the English. So today I would like to clear one thing, that English is just language. First of all, take it just language. Don't make it big type of thing. Don't make it just like a phobia. Don't think if you will speak, what will the reply of the society, what will be the reply of your opposite side person. You just think English is only language and you have to speak. For example, whenever we need to speak Hindi, what we do, just think what we do. We always speak. Whenever we are thinking, we just speak. We don't waste our time to translate. But when it comes to English, we always try to translate. So, my dear friends, I would like to clear one thing. Don't think about that. You just only one thing is that you just focus only one thing. That is speaking. If you are speaking, everything will be gone. Your fear will be gone. Just think only one thing. Whenever you are speaking in whatever language you are just speaking, just think, speak, think, speak. Don't waste your time to translating. If you are translating, so there is a problem, my dear friends. You will waste your time. You will feel hesitate. Your voice modulation will be down, and your confidence level will be down. So, my dear friends, you have to speak English. How? There is a problem of helping verbs. Verb, which verb first, second, third. What is object? What is subject? You are just thinking like that only. No, you have to change your way of speaking. You just have to reply. If someone is asking you, "Hey, where are you from?" You will say, "Okay, I'm from Rajasthan." Okay, that's English. If you are advanced person, you say, "I'm from Rajasthan." If you are more advanced, you say, "I belong to Rajasthan." Okay, that's word. If you are not getting, where are you from? From where? Okay, आपको इतना पता लग गया ना कहाँ की बात हो रही. Okay, I am from Rajasthan. नहीं आता बोलना, don't worry. From Rajasthan, that's fine. You have to reply. आपको सिर्फ जवाब देना है, कॉन्वर्सेशन करनी है. ये नहीं कि आपको ट्रांसलेट करना, आप अभी फेल हो जाओगे किसी इंटरव्यू पे. नहीं, आपको नॉर्मल फियर खत्म करना पहले अपना बोलने का. ये मत सोचो कि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा. हो सकता है आप बोल भी सके, बट अगर नहीं बोल सकते तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही करना है कि जब कोई आपसे बात करता है इंग्लिश में, आप ज्यादा नहीं बोल सकते, छोटे सेंटेंस तो बोल सकते ना. छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंसेस अगर आप उन्हें बोलना स्टार्ट करेंगे, बहुत ईजी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज आस्किंग यू, ओके, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन. आपको अगर पता लग गया ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप आराम से बोल दोगे, आई एम जस्ट डूइंग जॉब एंड आई एम वर्किंग, आई एम बिजनेस मैन, आई एम डूइंग स्टडी, आई एम स्टूडेंट, व्हाटएवर. अगर आपने समझा ऑक्यूपेशन का मतलब तो आप बोल पाएंगे. सपोज कि आपने नहीं समझा, तो क्या करना है, आपको प्यार से चेहरे पे स्माइल रखनी है और आपको आराम से पूछना है, ओके, इफ यू डोंट माइंड, मे आई नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन. इतना तो बोल सकते हैं ना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन. जिस वर्ड को आपको समझ नहीं आ रहा, जो वर्ड आप समझ नहीं पा रहे, आराम से क्या करना है, इतना पूछिएगा, इसका मतलब क्या है.
बेइज्जती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश में ही पूछा, हिंदी में थोड़ी पूछ रहे भैया क्या बोला आपने, आप इंग्लिश में बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। सामने वाला होता है ऑक्यूपेशन इज योर वर्क, आर यू स्टूडेंट, आर यू डूइंग जॉब, आर यू डूइंग बिजनेसमैन, आर यू हाउस, व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ओके आई एम स्टूडेंट, I'm doing job, I'm businessman, whatever. If you are a housewife, so you will say I'm housewife, or homemaker you can use. So this is the condition. If you wanna speak English, first of all try to speak. If you have a problem in a hesitation, so I would like to clear, my dear friends, hesitation is nothing in this world. Everything is here. When we feel down, everything will be down. When we feel positive, everything will be positive. Think positive, result will be positive. And one thing is that whenever you are just doing conversation, just start with smile. If you are speaking with smile, you can speak. If you are listening, if someone is speaking in front of you, you have to listen. Listen. Normally you have to listen with the smiling face. Yes. If someone is saying very fluently in English in front of you, hey, just tell me how's going your life and tell me what are you doing, what's the purpose of living life. अब आपको मान लो कुछ चीजें समझ में नहीं आई, बट कुछ तो आई, कुछ नहीं करना। मैं करो कुछ भी ना आया, कुछ आए तो भी आपको कुछ नहीं करना, स्माइल रखनी है। यस आई एम जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग गुड, छोटा सेंटेंस बोल दो, दैट्स इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू क्लियर यू वन थिंग, डोंट फील हेजिटेट, ट्राई टू स्पीक. If you will try to speak English, everything will be normally. So try to speak. Don't feel hesitate. इस दुनिया में अगर आप बोलना चाहते हो तो एक ही सॉल्यूशन है, एक ही इलाज है, बोलना स्टार्ट करो. अगर बोलना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी. कोई भी भाषा जो आप सीखना चाहते हैं बिना बोले नहीं सीख सकते. जो हमें आदत है ग्रामर सीखने की, किसी ग्रामर पढ़नी है, टेंसेस सीखने, सब्जेक्ट हेल्पिंग, अरे नहीं होगा उनसे. उससे सिर्फ ट्रांसलेशन करना सीख सकते हो कॉपी में. अब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें ट्रांसलेशन बहुत अच्छा आता है, ग्रामर बहुत अच्छी आती है. उनसे आप बोलोगे लिखो कोई भी सेंटेंस, वो आपको कॉपी में लिख के दिखा देंगे. और बात आती है एट द सेम टाइम उसको जवाब देने की, नहीं दे पाएंगे. स्पीकिंग एक अलग कंडीशन है और ग्रामर एक अलग कंडीशन है. तो आपको ये समझना है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्या है. इंग्लिश स्पीकिंग कुछ नहीं है, इंग्लिश है और बोलना है. स्पीकिंग मतलब बोलना, तो सिर्फ आपको बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग अपने आप हो जाए. ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जिन्हें ग्रामर नहीं आती बट इंग्लिश आती है. तो आप उन्हें देख करके सीखिए ना कि बिना ग्रामर के वो बंदा सीख कैसे गया बोलना, क्योंकि उसने बोलना स्टार्ट किया तो सीख गया. छोटा सा एग्जांपल आपको देता है. एक छोटा बच्चा जब होता है, न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट थिंक, एक छोटा बच्चा बचपन में सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता है. क्या करता है? देखता रहता है. अच्छा, उसके सामने बोले बेटा बोल माँ, हाँ, वो वर्ड नहीं सुन रहा, वो आपका एक्सप्रेशन देख रहा है और आपकी तरह करेगा. फिर आपने बोला पापा, पा पा, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके कुछ समय बाद वो बच्चा क्या बोलता है? माँ और पापा, जो भी वर्ड आप उसे सिखाएंगे वो बोलना स्टार्ट करते हैं. उसने आ से अनार नहीं पढ़े, उससे पहले ही क्या सीखना बोल गया? माँ बोल दिया. जबकि उसमें मात्राएं भी है, वर्ड भी ऐसी, पापा, हा का डंडा भी उसने तो नहीं सीखा, बट उसने सिर्फ सुन करके बोलना स्टार्ट कर दिया. उसने क्योंकि कोशिश की तो बोल गया. सेम एज इट इज इन इंग्लिश. आप एक छोटे बच्चे हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको लोगों को देखना है, लिसनिंग करने की आदत डालो. सुनो इंग्लिश के पॉडकास्ट, सुनो इंग्लिश की वीडियोस, देखो इंग्लिश वाले एटमॉस्फेयर को, देखो अब क्या हो रहा है, उसको सुन करके धीरे धीरे आप भी बोलना स्टार्ट कर देंगे. जैसे भी आपसे मैं बोलूं, अभी आपको जल्दी से कुछ सेंटेंसेस में बात करनी है. जैसे इंग्लिश में बोलो वेयर आर यू फ्रॉम अरुण, हे अरुण व्हाट आर यू डूइंग, आपके लिए बहुत ईजी है. बट अभी मैं बोलूं what are you doing Adam Gilchrist, hi Matthew, how are you, how is going your life, अब आपके लिए नाम अजीब हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने यूज नहीं किया. जब आप यूज करेंगे तो ये भी इजी हो जाएंगे. अब हमारे लिए मम्मी पापा या छोटे छोटे जो भी जितने नाम है सब इजी है. क्यों? क्योंकि हमने बोला है. जैसे हम इंग्लिश के नाम सुनना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश ईजी हो जाएगी. जैसे जो बच्चे क्रिकेट देखने के शौकीन है या रेसलिंग देखने के शौकीन है, फुटबॉल देखने के शौकीन है, कई ऐसे नाम है जो इंग्लिश में आज उनको आते होंगे. रीजन? क्योंकि सुन करके हमने उसे कई बार बोला होगा. चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो मेसी हो, चाहे क्रिकेट के अंदर बात करें तो बहुत सारे लाइन लगा करके हैं, रेसलिंग में बहुत सारे लाइन लगा करके. तो आप जब सुनते हैं ना तो बोलना सीख जाते हैं, और जब बोलते हैं तो स्पीकिंग कहलाती है. सो अपना जो टाइम है
डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्रांसलेट. ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग. यू जस्ट डू, आप उसे करो, बट उसी पे डिपेंड रह करके सोचो कि इंग्लिश आ जाएगी, नहीं आएगी. आप ट्रांसलेट सीख सकते हो ट्रांसलेशन से, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख सकते. इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश, हिंग्लिश और हिंदी, तीन के बीच में अभी आप हो.